Okay, so hello everyone and welcome back to the another GFG POT streak. Today's question name is find pair given difference. Easy category question है, standard question है. So let us read the question and we'll see all the possible approaches for this question as well. ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं. इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, राइट. होप आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा. हम एक ब्रूट फोर्स देखेंगे, फिर हम एक बेटर टेक्निक देखेंगे और हम एक ऑप्टिमल देखेंगे, राइट. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज एक्स अदरवाइज रिटर्न 1, राइट. तो पेयर बनाना है यार हमें. तो ब्रूट फोर्स क्या हो गया कि फॉर्म ऑल पॉसिबल पेयर्स, राइट. ऑल पॉसिबल पेयर्स फॉर्म कर लेंगे. ऑल पॉसिबल पेयर्स फॉर्म करने में कितना 2 नेस्टेड फॉर लूप यूज होगा, दैट इज ओ ऑफ एन स्क्वायर एज टाइम कम्स टी एंड स्पेस कम्स टी एज ओ ऑफ 1, राइट. तो इसका कोड तुरंत से देखते हैं एंड देन विल मूव अहेड विद द बेटर वन एंड द ऑप्टिमल वन. तो इसमें हमने क्या किया यार कि हमने सबसे पहले एक फॉर लूप लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम आई इक्वल्स टू 0 टू लेस देन एन, देन अनदर फॉर लूप स्टार्टिंग फ्रॉम आई प्लस 1 टू लेस देन एन, और उन्होंने बस चेक कर लिया कि एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे इक्वल्स टू एक्स है. देन रिटर्न वंस, एल्स ऐसा नहीं है एट एनी पॉइंट तो रिटर्न माइनस वन एंड दैट इज इट फॉर दिस अप्रोच. तो इस सोल्यूशन को सबमिट करते हैं. व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस अगेन? टाइम इज ओ ऑफ एन स्क्वायर एंड स्पेस इज ओ ऑफ 1. सो वाइल इट इज सबमिटिंग, क्या आप बता सकते हो कि ये सोल्यूशन सबमिट होना चाहिए या नहीं? 10 पर 6 इसका कंस्ट्रेंट है एंड व्हाट इज द number of iteration we are using n square. So 10 power 6 square is nothing but 10 power 12, which is greater than 10 power 8. So that is why even if our code and approach is right, we will get a TLE for this solution. Let us verify that as well. So for some of the cases we got the TLE because 10 power 8 का overbound it must have been hit, right? ठीक है. तो second, the better approach is that we sort an array. We sort the array and we mention a 2-pointer. We use a 2-pointer approach. 2-pointer approach, right? So let's take this example. If we sort the first array, then what would be the array there? So 2, 3, 5, 5, 20 and 80, right? So let us search for 78 as target and then we'll also do one more dry run of with some another array. Let's say 2, 3, 7 and 20 and 80, and we will search the target here as 4 just to understand how the 2 pointers will behave. So I'm saying that let us start the ith pointer at the first element and the jth pointer as the second element, right? And we will calculate the difference of these two elements. What is the difference? 3 minus 2, there is 1. So 1, the current difference is 1. The current difference between the pair is 1, but we want the difference to be as 78, right? And 78 is a very large sum compared to our current difference. तो हमें अपने difference को बढ़ाना है यार, राइट. और ये दो नंबर्स है तो मैं किस डायरेक्शन, तो जे को अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा तो डेफिनेटली जो हमारा जो सेकंड पेयर है वो एक हायर वैल्यू पे चला गया है. तो अब हमारा जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी ग्रेटर. सो अगेन 5 minus 2 will give you 3, but again the current difference is much lesser than my current target. Again I'll increment my j pointer further ahead. Again 5 minus 2 is 3, so I'll again move ahead. So 20 minus 2 is 18, but still it is smaller than my target, so I'll again move my j pointer. 80 minus 2 is 78 and we have finally reached the target. And if that's the case, we'll just say return 1, else after the end of the for loop we'll say return minus 1. Okay, so let us do one more dry run for the another case as well where we can understand how the jth pointer is responding. So this is I, this is j. Now the current difference is 1 and I can see it is lesser than my target, so I'll move my j pointer ahead. Now the current difference is 5. Now I can see that my current difference is greater than my target. So what I need to reduce my difference. तो मैं क्या करूँगा यार, अपने I pointer को आगे बढ़ाऊँगा, right? And now you can clearly see 7 minus 3 will give you a difference which is for sure lesser than my previous differences, right? तो 5 है तो यहाँ पे 4 आ गया, और अगर इससे मैच कर गया तो वेल एंड गुड, रिटर्न 1. Else we'll just keep on doing it until and unless we reach the end of the array, right? So please pause this video here, try to code this approach by yourself. And how do we handle that till the end of the array? How we'll write it in the code? So I'll just help you in that. So I'll just say while I less than n and j less than n, right? This would be the condition for the while loop, and please do the coding ahead now. Okay, so that's the code for approach or method 2. So first we have sort an array and then we have a 2 pointers, that is for I pointing to 0 and j pointing to 1. So we will be iterating in the array until unless both of the pointers go out of the bounds, right? So अगर एक भी आउट ऑफ बाउंड चला गया, जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था, जे जो है ऑलमोस्ट अब लास्ट एलिमेंट पे आ चुका है, राइट? एक बार और इंक्रीमेंट करेगा इट विल बी आउट ऑफ बाउंड, तो उस केस में हम अपने वाइल लूप को रोक देंगे. सो टिल बोथ ऑफ द पॉइंटर्स आर इनबाउंड, राइट? बोथ शुड बी इन इनबाउंड, देन ओनली विल डू द इटरेशन. क्योंकि अगर एक भी आउटबाउंड चला गया तो फिर पेयर कैसे एग्जिस्ट करेगा यार. नाउ
We are checking if array of j minus array of phi equals to x, then definitely we have found our answer, return 1. But if the current difference is lesser than my target, then what we saw that we were incrementing the j pointer, so that's what is written here, j plus plus. In the else case we were incrementing I pointer. ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया. तो आपने ये क्यों लिखा यार भैया, आई नॉट इक्वल टू जे? तो ये एक पर्टिकुलर केस को हैंडल करेगा यार. लेट्स से कि आपको ये स्पेसिफिकली एक केस को हैंडल करेगा जहाँ पे टारगेट 0 है, राइट, एंड यू डू नॉट हैव एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन योर एरे. अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स होता लेट्स से 5,5, राइट, तो फिर ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी हमें, इतने से हमारा काम हो जाता. बट यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स लेट्स से नहीं है किसी केस में, क्योंकि वो हमारे पे दैट इज़ नॉट आर वर्क, राइट. टेस्ट केस कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पे अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है, बट स्टिल इफ़ आई डोंट राइट दिस केस, तो क्या होगा कि देखो 1,2 है, आई यहाँ पर हुआ और जे 2 पे होगा. इट विल से दैट द करंट डिफरेंस इज़ 1, राइट. तो हमें इसको रिड्यूस करना है, राइट. रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, आई जो है आगे बढ़ जाएगा ना, आई एंड जे बोथ विल बी पॉइंटिंग टू 2, और इसका जब 2 - 2 करोगे तो 0 हो जाएगा. बट 2 के तो सिर्फ एक ही इंस्टेंसेज है ना. अगर 2 इंस्टेंस हो तब तो कह सकते थे कि हाँ अगर 2 सेम एलिमेंट है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 हो गया. सो दैट्स द रीज़न यार वी आर राइटिंग सेम इंडेक्सेस को आप कंसिडर नहीं करोगे, राइट. 2 इंडिविजुअल एलिमेंट्स को बना के एक पेयर बनाना है, ठीक है. सो दैट वुड बी इट. अब इसका टाइम कॉन्स्टेंट O of n log n है, राइट, एंड द कंस्ट्रेंट हियर इज 10^6. तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन सबमिट हो जाएगा, राइट. अगर आप 10^6 को अगेन, सो n log n इज द टाइम, राइट. n log n is the time, and if you put 10^6 log of 10^6, it will be less than 10^8, right, less than equals to 10^8, definitely less than 10^8, and that is why this code got submitted. ठीक है, एक लास्ट अप्रोच देख लेते हैं. लास्ट अप्रोच एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है, राइट. अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें. एंड यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें करते हैं यार. हमारे पास एक्चुअली 4 प्लेलिस्ट है, जहाँ पे एक PUTD का प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम रोज़ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं DSA पूल से. एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो जहाँ के जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उसका मैं वीडियो बना लेता हूँ कि आपको भी इससे हेल्प मिल सके कि व्हाट आर द राउंड्स आज, DSA कैसा होता है, HR कैसा होता है, एंड एवरीथिंग. एंड वी हैव वन एडवांस टॉपिक्स के सारे प्लेलिस्ट मेंटेन है. एंड आई हैव टेकन सम सेमिनार्स एट माई SRM यूनिवर्सिटी, डूज एंड DSA डूज एंड डोंट्स. ये सारे स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चंस थे, मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं था. उनके क्वेश्चंस को ही आंसर कर रहा था, DSA वर्सेस CP डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग. तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, राइट. इसको भी देख लेते हैं. ये हम हैशसेट से सॉल्व करते हैं यार. एक क्वेश्चन है पेयर सम, बहुत बार मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया यार 1-2 बार. बस ऐसे ही जस्ट टू हैव, जिससे आप इंटरव्यू में जाते हो तो पूछा जाता है ना कि एक नॉर्मल क्वेश्चन की जैसा आप कंफर्टेबल हो जाओ, टू गेट कंफर्टेबल इंटरव्यू. तो ये ऐसा क्वेश्चन है, राइट. तो लेट्स से मैं आपको इसका एक इंट्यूशन दे देता हूँ. तो लेट्स से आपके पास कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं. लेट्स से यू हैव 2, 3, 4, 5 एंड 9, राइट. आपको बताना है कि कोई ऐसे कोई पेयर एग्जिस्ट करते हैं यार जिनका सम जो है 7 के बराबर हो, राइट. तो अब तो पहले क्या करोगे कि ये अपना ब्रूट फोर्स हो जाएगा, फिर ये सॉर्टिंग वाला अप्रोच हो जाएगा. बट मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक एक करके सबको हैशसेट में डालना शुरू कर दो. जैसे यहाँ पे 2 है फर्स्ट एलिमेंट, तो ये मेरा सेट है, मैंने 2 उसमें पुट कर दिया. जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आऊँगा, राइट, मैं क्या खोजना चाहता हूँ, मैं खोजना चाहता हूँ 3 प्लस सम अनदर पेयर विच आई डोंट नो, आई एम अज्यूमिंग इट एट x शुड बी इक्वल्स टू 7. मैं यही खोजना चाहता हूँ. तो 3 इज़ नथिंग बट माई एरे ऑफ आई, दिस इज़ माई एरे ऑफ आई, दिस इज़ माई टारगेट, राइट. मैं फाइंड किसको करना चाहता हूँ, x क्या है. तो x को अगर मैं अब इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 7 - 3, दैट इज x इज़ नथिंग बट टारगेट माइनस एरे ऑफ आई, राइट. यही खोजना चाह रहे हैं हम. और हैशसेट में जो खोजने का काम है, दैट इज टू सर्च, इट टेक्स O of 1. सो दैट इज द रीजन वी यूज हैशसेट टू पुट द प्रीवियस एलिमेंट्स इनटू आवर इन अकाउंट. सो आई विल जस्ट सर्च इफ 7 - 3, that is 4, is present in my hash rate 1, so that's not present. So I will again push the current element, that is 3. I'll come back to 4 again and I will see 7 minus 4, which is 3. If 3 is present in my hash set, I will say okay, it's present. So then and there I will just say return 1 कि हमारा काम हो गया है. Similarly हमारे केस में क्या होगा यार कि जब हम सर्च करना चाहेंगे तो इन्होंने बोला है कि A एब्सोल्यूट डिफरेंस है, राइट. सो A minus B would be equals to X, right. And at the same time we can say, ठीक है, तो इन द सेम मैनर आई कैन से कि अगर A minus B equals to X है, राइट, तो मैं किसको सर्च करना चाहता हूँ. बट ये भी ट्रू है कि B minus A equals to X है क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस उन्होंने बोला है, राइट. तो मैं सिर्फ ये नहीं कर सकता कि B को एरे ऑफ I बना के मैं निकाल लूँ कि मैं सर्च किसको चाहता हूँ, A को, राइट. तो मैं किसको सर्च कर तो मैं A को सर्च करना चाह रहा हूँ, राइट. तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, X प्लस B, राइट. और आई कैन से जस्ट टारगेट प्लस एरे ऑफ I. बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि B minus A भी अपना इक्वल्स टू X होगा. सो इन द अदर केस दिस A could also be my array of I, the current element which I am traversing. Considering this as current element और मेरे को B फाइंड करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि B is nothing but
b इज नथिंग बट a माइनस एक्स, राइट। और a को हमने क्या अज्यूम किया था, एरे ऑफ i, सो आई कैन जस्ट से एरे ऑफ i माइनस एक्स। मतलब कि यार हमें इन दोनों इक्वालिटी के लिए हैंडल करना पड़ेगा। सेट डॉट कंटेन्स में चेक करना पड़ेगा कि अगर इफ इट इज अगर एरे ऑफ i माइनस एक्स इज ऑल्सो देयर और x प्लस एरे ऑफ i इज ऑल्सो देयर, देन वी विल गेट एन आंसर, राइट। ठीक है यार, तो ये तुमने मैथमेटिकली समझ लिया कि बस को करना है, बट एक बार इसका ड्राइवन भी दिखा देते आप तो मज़ा ही आ जाता, राइट। तो एक बार इसका ड्राइवन भी देख ले। ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट केस लेते हैं। मैंने एक डिज़ाइन कर रखा है टेस्ट केस जहाँ पे ये चीज़ फंसेगी। तो लेट्स से हम टेस्ट केस लेते हैं 9 3 5 6 6, राइट, 2 एंड 8, लेट्स से 8 ऑल्सो। तो इसमें मेरे को टारगेट निकालना है 4, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ इसके थ्रू चलोगे आप, एरे ऑफ i माइनस एक्स, जैसे हम सम के लिए कर रहे थे वैसे माइनस किया तो काम नहीं बनेगा, ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि एक सेट बनाता हूँ और सेट में सबसे पहला एलिमेंट है तो 9 को पुश कर देता हूँ। फिर मैं 3 पे आया, टारगेट हमें 4 चाहिए, ठीक है। तो 3 माइनस 4 चेक होगा अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी, राइट। और देखिएगा कि अच्छा -1 तो नहीं है, तो ठीक है आगे बढ़ जाओ, 3 को पुश करके बस। अगेन 5, तो 5 माइनस 4 चेक होगा, अच्छा 1 अगेन नहीं है सेट में, तो 5 को पुश करो और आगे बढ़ जाओ। अब 6 के पास आएंगे, 6 अगेन चेक होगा, 6 माइनस 4 2, तो 2 है, फिर से सेट में 2 नहीं है तो 6 को पुश करो, आगे बढ़ जाओ। सिमिलरली इस 6 के लिए भी 6 माइनस 4 2, अब सेट जो है डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है तो अगेन से 6 पुश नहीं होगा। फिर 2 पे आएंगे हम, 2 पे हम चेक करेंगे यार कि 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2 तो है नहीं यार, तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ। यहाँ मेरा आंसर अगर आप मैनुअली देखो तो ये दो पेयर बना के आंसर मिल सकता था, मैं 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, राइट। बट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एरे ऑफ i माइनस एक्स को चेक कर रहे थे, राइट। राइट की तरफ मूव कर रहे थे तो सिर्फ लेफ्ट एलिमेंट को ट्रैक कर रहे थे। हमें इसका वाइस वर्सा भी करना होगा कि राइट की तरफ तो मूव कर रहे हैं, बट राइट वाले एलिमेंट्स को भी ट्रैक करो। तो उस केस में x प्लस ए ऑफ i हमारा हेल्प करेगा। अगर आप देखो यहाँ पे तो हम क्या चेक कर लेंगे कि जो 2 पे है, तो 2 पे अगर मैं ये चेक कर लेता कि x इज़ नथिंग बट 4, द करंट एलिमेंट दैट इज़ 2, 4 प्लस 2 6, हाँ 6 है। इसका मतलब है यार कि ये जो 6 प्रेजेंट है और ये जो 4 प्रेजेंट है, ये जो 2 प्रेजेंट है, उसका सब्ट्रैक्शन निकाल के हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो दैट्स द रीज़न यार, दैट्स द रीज़न। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है यार, अब चलते हैं अपने कोड पे। तो अगेन हमारा कोड एक हैशटेग बनाया हमने और एक फॉर लूप है गोइंग फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 टू i लेस देन n। हमने वही चेक किया, सेट डॉट कंटेंट्स एरे ऑफ i माइनस एक्स। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एब्सोल्युटली हैंडल करना था तो हमने एरे ऑफ i प्लस एक्स भी चेक किया। हमने मैथमेटिकली भी डेराइव किया कि ऐसा क्यों है, और हमने एक ड्राइव करके देख भी लिया कि कहाँ कौन से टेस्ट केस में ये चीज़ प्रॉब्लम करेगा। एंड इन द एल्स केस में बस सेट को नंबर्स को ऐड करते रहो, राइट। एंड एट द लास्ट अगर कोई भी पेयर नहीं मिला तो डेफिनेटली रिटर्न -1। ओके, सो दैट वाज दी ऑप्टिमाइज्ड। एंड इसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई अप्रोचेस बचे हैं। सो एक बार समरी देख लेते हैं। हमने ब्रूट फोर्स देखा O ऑफ n स्क्वायर, फिर हमने सॉर्टिंग टेक्निक देखी O ऑफ n log n में, फिर हमने हैशटेग वाला अप्रोच देखा O ऑफ n में, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को एक ही बार पुश कर रहे हैं। दैट्स इट, वी आर जस्ट आइटरेटिंग वंस। सो दिस वुड बी टाइम एंड डेफिनेटली n 10 पावर 6 है तो TLE आने का सवाल ही नहीं उठता, सक्सेसफुल सबमिशन होगा। एंड O ऑफ n वुड बी योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप देखो यार, एक और टर्म यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे O ऑफ 1 था, राइट। तो अपने टाइम को कम किया बट स्पेस को बढ़ा दिया। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ भी कहते हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ हमने किया, राइट। ठीक है यार, तो ये सोल्यूशन भी सबमिट हो गया। लेट अस मीट अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय।